So what exactly is design pattern, right? So let's start with a just formal definition, and then probably we'll start going through each and every design pattern. Okay. So in simple terms, design principles are nothing but just a set of guidelines, okay, that got originated by people who have multiple years of experience in software development, okay, and they provide some kind of a template, okay, with which you can probably structure your code and write a meaningful code, right? So if you see the definition, design patterns are typical solutions to common problems in software design, right? So it's not a rocket science. Probably each and every person on a day-to-day basis uses this kind of a thing, right? And you encounter some kind of a challenges. So whenever people deal with a large-scale system, right, the code complexity will keep on increasing, right? So whatever problem that gets originated, the design patterns provide some kind of a template or guideline so that you can avoid all those problems that are going to come up in the future. Okay. So basically, design patterns are categorized in three sections. Okay. The first section is known as the creational design pattern. The second section is the first one is the creational, second one is the structural design pattern, and the third one is behavioral design pattern, right? And each of the categories there are multiple design patterns. ठीक है. So ये तीन broad category था जिसके अंदर there are multiple design patterns. ठीक है. और इसमें मैंने I'll share this link. ठीक है. And I've shared these two links, right? One is from the refactoring group and one is from the journal dev, right? So these two are few of the sites, okay, that have a very clear explanation of design patterns. So when I started my software developer journey, okay, I used to refer them to get the idea of the design patterns, okay, and till today sometimes I refer them to get a better idea, okay. So journal dev is the site. If you have first time going through the design pattern, this is the best site to have. Probably it will provide you just the basic knowledge that you require about that design pattern. Okay. And probably if you are slightly experienced and if you know the basic details, then probably you can refer the refactoring guru. Okay. And there are certain books like the Gang of Four and all. Those are treated as the Bible of the design pattern. Okay. So अगर links refer करना है, ठीक है, so probably you guys can refer these two links. अगर basic understanding चाहिए तो journal dev is good one, and if you require in-depth knowledge then probably the refactoring guru is the place to visit. ठीक है. And there is some other link like the Bildung and all. They also provide some of the great resources. ठीक है. So let's start again. ठीक है. So हमने तीन टाइप की बात की, right? Creational, structural and behavior. So what is creational, right? There is a word called creational, right? So creational design patterns are set of design patterns, ठीक है, where it is related to the creation of objects. ठीक है. जब भी कोई इम्प्रोवाइज करते हैं या देयर इज सम टेम्पलेट, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन दिया गया है which falls under the category of object creation, then that will be classified under the creational design pattern. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? स्ट्रक्चरल, राइट? सो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न जनरली डील्स विथ, ठीक है, कि प्रोबेबली तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, सॉरी तुम्हारा ऑब्जेक्ट हाउ इट विल बी क्लब्ड इन द लार्जर सिस्टम. ठीक है. एंड विल सी ईच एंड एवरी कि तुम्हारे हाउ यू विल क्लब दैट योर ऑब्जेक्ट, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा अराउंड दैट. एंड द थर्ड वन इज द बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न, राइट? हाउ योर ऑब्जेक्ट्स विल कम्युनिकेट विद द अदर्स. ठीक है. तो वन बाय वन विल गो एंड देखो डिजाइन पैटर्न में जनरली क्या है, ठीक है, कि देर आर सम, अब जैसे कि कुछ डिजाइन पैटर्न है लाइक इफ यू सी दिस, जैसे देखो देर आर सम मोमेंटो, देर इज सम स्ट्रेटेजी, राइट? सो देर आर सम डिजाइन पैटर्न्स विच आर नॉट सो पॉपुलर, ठीक है, एंड देर आर सम डिजाइन पैटर्न्स विच आर वेरी पॉपुलर, जैसे क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है. ठीक है. So almost all the design patterns in the creational categories is very popular. ठीक है. Let it be factory, let it be abstract factory, builder, prototype और singleton. ठीक है. So design patterns में generally एक तो if you want to be a good developer, if you want to write high quality codes, design pattern is one thing that you need to have a command. Solid principle is definitely one, and you need to have a command over the design pattern so that whenever the problem arises, you can suggest or you can use the right set of design principle in that particular case, design pattern in that particular use case. ठीक है.
एंड कभी कभी कोई तुमसे पूछेगा, राइट? अगर इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू में प्रोबेबली डायरेक्टली कोई ये नहीं जनरली पूछता है कि टेल मी अबाउट द डिजाइन पैटर्न्स, राइट? इट कैन हैपन दैट यू हैव यूज्ड सम ऑफ द डिजाइन पैटर्न्स इन द कोड, ठीक है, बट नॉट ऑल, राइट? दैट कैन बी इंस्टेंसेस, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुमने सारे डिजाइन पैटर्न्स यूज किया होगा. So sometimes they can ask you basic design pattern details, or sometimes they can ask you what all kind of design pattern that you have used in your code, give with example, right? So at that particular time you should be clear in what scenarios you use that design pattern, what was the use case of that particular thing, right? And sometimes the basic design pattern, right, जैसे singleton है, उसके क्वेश्चन को भी पूछ सकता है, because that is the basic one, it's expected from everyone. Builder, दिस इज वन ऑफ द डिफेक्टो, मतलब सबको यूज करते ही हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न, ठीक है? सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ सिंगल डिजाइन पैटर्न? देखो, यूज सबने कहीं ना कहीं किया होगा, ठीक है? प्रोबेबली यू माइट रिमेंबर द नेम, यू माइट नॉट रिमेंबर द नेम, ठीक है? हो सकता है प्रोबेबली नाम नहीं जानते हो, बट यू हैव यूज्ड इन योर कोड. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक द फर्स्ट टाइम कि नो आइडिया अबाउट द डिजाइन पैटर्न? ऑल एनीवन? ठीक है, so एटलीस्ट सबको इतना पता है कि डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं. If you can just give a count कि how many design patterns you know. How many if you're about, मतलब just एक number कि probably 3 design pattern, 4 design pattern, 10 design pattern, something like this. 2 3, right? Anyone else? Singleton, builder, factory, strategy alone, factory and singleton, ठीक है? So एक common देखो, you guys will observe one common thing, ठीक है? Factory, singleton and builder. Builder, singleton, factory and the builder is the most common design pattern that is used, ठीक है? तो सबको जनरली वो यूज करता है. स्ट्रेटेजी इज वन ऑफ द थिंग आदित्य दैट यू सेड कि you have used a strategy, but I am sure you might have used the others. You code in which language, Aditya? Java, bro. Which one? Framework. Java. Java. So you must have used Yes. builder, I'm sure. And singleton, so definitely, right? You must have used Builder, I guess, use this builder annotation, like using the builder annotation. करेक्ट करेक्ट. हाँ, बिल्डर का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि लोग बिल्डर को बिल्डर नोटेशन से ही यूज कर लेते हैं. सो दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द इनर कि बिल्डर में होता क्या है, बट एवरीवन यूजेस बिल्डर, ठीक है? एंड सिंगलटन सब यूज करते हैं बिकॉज स्प्रिंग के बीन्स वगैरह सारे सिंगलटन होते हैं, राइट? सो प्रोबेबली वहां से आइडिया आ ही जाता है. उसके बाद द फैक्ट्री, सो बिल्डर एंड सिंगलटन के बाद द फैक्ट्री इज द फर्स्ट डिजाइन पैटर्न विच इज द मोस्ट कॉमन वन, ठीक है? एंड एक चीज हमेशा याद रखना, डिजाइन पैटर्न का ओरिजिनेशन रियल लाइफ से ही हुआ है, ठीक है? सो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम थे, एग्जैक्टली जो डिजाइन पैटर्न है दैट विल रिप्रेजेंट अ रियल लाइफ सिनेरियो, ठीक है? तो जब भी आई टेक अ डिजाइन पैटर्न, पहले आई ट्राई टू टेल द रियल लाइफ सिनेरियो ऑफ द डिजाइन पैटर्न, ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिजाइन पैटर्न, राइट? द बिल्डर, ठीक है? सिंगलटन I'll cover, but singleton में mostly क्या है कि singleton सबको पता है, right? Singleton design pattern only says कि probably you need to have a single instance of that particular object, ठीक है? You should मतलब stop other people for creating multiple instance of that singleton object. So this is one of the most famous question for the interview as well, कि how you will implement the singleton design pattern, ठीक है? Singleton के लिए probably एक link है that I'll share, and I'll walk through the steps in that link, because singleton as a design pattern is the most common, but that is most commonly asked question in the interview as well, ki how to implement a singleton design pattern. It will start from that basic singleton, it will be get broken by a multi-threading, then how it multi-threading handle करने के बाद probably it can be broken down by probably reflection. तो उसमें सारे steps लिखे हुए हैं, तो one by one we will walk through that all the steps, ठीक है? And I'll share that link. So let's start with a builder first, right? So anybody familiar with builder? सबने मोस्टली यूज किया है बिल्डर, राइट? सो बिल्डर से क्या लगता है, बिल्डर डिजाइन पैटर्न क्या करता है, एंड व्हाट इज द रियल लाइफ सिग्निफिकेंस ऑफ बिल्डर? कहाँ पे देखे हो बिल्डर डिजाइन पैटर्न यूज होते हुए रियल लाइफ में? एनीवन वांट्स टू जस्ट आंसर दैट? अच्छा, सिर्फ इतना, एनीवन इफ वांट्स टू टेल कि बिल्डर में होता क्या है, बिल्डर में करते क्या है, व्हाई वी यूज बिल्डर डिजाइन पैटर्न? रियल लाइफ को छोड़ देते हैं, why you use builder design pattern, right? Anyone wants to try?
Object creation with variable number of parameters, right? This is definitely one of the point for the builder design pattern. So Jeet, one question. So if we have object creation with variable number of parameters, can't we use multiple constructor approach for that? Why we need to go ahead with the builder? Okay, anyone else wants to take that point, why we use the builder design pattern? Okay. Chaining off, right? Chaining off is one of the properties. Heavy constructor can be avoided. हाँ, this is one of the interesting point. ठीक है. So एक बार बिल्डर का स्टार्ट करते हैं, ठीक है. बिल्डर का रियल लाइफ से स्टार्ट करते हैं, राइट. एक रियल लाइफ में देखो, ये याद हाउ द फैक्ट्री वर्क्स, राइट. फैक्ट्री में एक प्रोबेबली ये एक बेल्ट होता है, राइट, कन्वेयर बेल्ट टाइप का, राइट. एंड यहाँ पे लेट्स सपोज द टॉयज आर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड, राइट. तो यहाँ पे टॉयज का लेट्स सपोज हैंड बिल्ड होगा, फिर उसमें हेड अटैच होगा, ठीक है, फिर दूसरा हैंड अटैच होगा, फिर यहाँ लेग अटैच होगा, एंड देन फाइनली द प्रोडक्ट विल कम आउट ऑफ दैट, राइट. ऐसी फैक्ट्री में काम चलता है, राइट. या गुड. No, sorry. Okay, ठीक है. So in the conveyor belt probably we attach one and other properties in हर एक वाला जो सिस्टम है, probably यहाँ पे हैंड अटैच होगा, यहाँ पे probably लेग अटैच होगा, यहाँ पे हेड अटैच होगा, ठीक है, and then probably final product will come out, right. Now this particular thing slightly resembles the builder design pattern. Why? Because ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, we took a prototype, ठीक है. प्रोटोटाइप मतलब क्या, एक नॉर्मल सा बॉडी ले लिए, ठीक है, एक ब्लैंक बॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग ले लिए, ठीक है. हियर वी नीड टू अटैच हेड, हियर वी नीड टू अटैच हैंड, यहाँ हैंड अटैच होगा, यहाँ पे लेग होगा, एंड फाइनली दिस टॉय विल बी क्रिएटेड, राइट. सो वी स्टार्टेड विद दिस स्केलेटन, ठीक है, एंड देन प्रोबेबली वी अटैच ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन, एंड फाइनली वी हैव द ऑब्जेक्ट आउट, ठीक है. अब एक चीज है बिल्डर में क्या करते हैं, ठीक है. पहले एक बार बिल्डर देख लेते हैं, फिर एक बार रियल लाइफ एग्जांपल पे बात करेंगे. व्हाई इट इज बिल्डर एंड व्हाई इट इज नॉट बिल्डर, बोथ द थिंग्स विल बी क्लियर फ्रॉम देयर, ठीक है. एक बार प्रॉब्लम वहां से, ठीक है. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बिल्डर डिजाइन पैटर्न इज व्हेन द कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, आर हैवी, ठीक है. अब कंस्ट्रक्टर हैवी होने का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि इफ यू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड उससे भी ज्यादा मल्टीपल ऑप्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है. व्हेन यू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड उससे भी ज्यादा मल्टीपल ऑप्शनल प्रॉपर्टीज, सो व्हाट प्रोबेबली हैपेंस, ठीक है, कि यू नीड टू प्रोवाइड लेट्स सपोज कि 10 कंस्ट्रक्टर, राइट, क्योंकि somebody wants to create an object with let's suppose 3 property, somebody wants to create that object with 4 properties, some with 5, some with 6, right. So ultimately your constructors are going to be huge in number, right. So the client who wants to instantiate the object, ठीक है, will not be knowing, ठीक है, कि hey which constructor to use, I'm confused between multiple parameter, right. And especially the classes in which there are multiple boolean properties, right. उस वाली क्लास में तो और डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज दिस बूलियंस आर गोइंग टू बी द ऑप्शनल फील्ड मोस्टली, ठीक है. तो क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा कि किस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है, ठीक है. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 क्या है, इवन समटाइम्स नाउअडेज क्या होता है, ठीक है, कि इवन इफ द प्रॉपर्टीज आर मैंडेटरी, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ठीक है, कि 10 प्रॉपर्टी पास करना है, राइट. सो 10 प्रॉपर्टी पासिंग इन अ सिंगल कंस्ट्रक्टर इज स्लाइटली ऑफ ट्रैक, ठीक है. क्या लगता है कि सारे के सारे प्रॉपर्टी को एक बार पास करना से, तो कंस्ट्रक्टर का जो कोड है, कोड वाली जो लाइन है, दैट विल लुक वेरी बल्की, ठीक है. एंड यू नीड टू बी अवेयर अबाउट कि सारे पैरामीटर्स ऑर्डर में पास हो रहे हैं कि नहीं, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. सो द कोड रीडेबिलिटी डिक्रीजेस बाय ह्यूज एक्शंस, ठीक है. तो somebody thought, hey, ऐसा करते हैं कि I let somebody create that object with that mandatory parameter, ठीक है. 2-3 जितना भी तुम्हारा mandatory parameter है, उसके साथ let the object get created, ठीक है. And after that, one by one you can attach the property in this, ठीक है. And whenever you are done with that, just say me कि build. Now build this object and I'll give you the
real object. ठीक है? So to summarize, you will start with a skeleton object. ठीक है? You will keep on adding multiple properties. ठीक है? Till ever you require, and whenever you are done, you will just say build, and finally I'll give you that object. ठीक है? ये toy object मैं तुमको return कर दूंगा. ठीक है? Now, if you look carefully, right, I said that there is a skeleton object, okay, and you are attaching these properties, right, and finally you are calling this build. So whoever is doing this job, what is that? जो भी ये काम कर रहा है build करने का, वो क्या है? वो एक builder है, right? उसका काम है बनाना, ठीक है? Somebody who is doing the job or building the stuff, right, is a builder, right? And वो क्या बना रहा है? He is building that toy, right? So he will be toy builder. ठीक है? Same example, house, right? You have house, right? So somebody who is building that house will be known as the house builder, right? So in builder design pattern, that's the generic naming convention. ठीक है? कि the inner builder class will be known as the object name plus builder in it. ठीक है? So if it is a student object, it is student builder. If it is a house, it will be house builder. If it is a toy, it will be toy builder. It's generally the naming convention. ठीक है? अब देखते हैं एक एग्जांपल के साथ. ठीक है? Let's suppose you have a house, right? हाउस में नॉर्मली क्या है कि एक बेसिक स्केलेटन हाउस है, राइट? ठीक है? एक बेसिक स्केलेटन हाउस क्या है जिसमें कि 4 वॉल्स है, दरवाजा है, छत है, राइट? नाउ some fancy guys comes in and say कि hey, I need a swimming pool here. ठीक है? So you'll say okay. So first there was a house with 4 walls plus roof. ठीक है? बिना वॉल के एंड बिना छत के घर नहीं हो सकते, राइट? सो प्रोबेबली दिस आर द मैंडेटरी पैरामीटर्स. हाउस के साथ 4 वॉल प्लस रूफ, राइट? नाउ somebody comes and say कि hey, I want a swimming pool in that. So I'll say very good, I'll give you this house. ठीक है? 4 वॉल प्लस रूफ, ठीक है, प्लस इस स्विमिंग पूल. ठीक है? इस स्विमिंग पूल. ठीक है? सो यू विल से you have these mandatory parameters. Now there is one more additional parameter is swimming pool. ठीक है? Now somebody comes up and say कि with the swimming pool I want some trees as well, or probably the canopy, right? Fancy कर लेते हैं, ठीक है? बहुत कमा रहा है तो कैनोपी लगाएगा घर में. ठीक है? तो हाउस में 4 वॉल, रूफ, स्विमिंग पूल एंड कैनोपी, राइट? So either you are going to create multiple constructor. ठीक है? So in that particular case the client might get confused कि which constructor to invoke. ठीक है? And there is a other case in which either you will give a single constructor. Now the problem will be कि there are multiple parameters, right? 4 wall plus roof plus is swimming pool, is canopy, is garden, or multiple other parameters, and most of them are going to be optional, right? क्योंकि मुझे अगर सिर्फ बेसिक घर चाहिए, so I'm not going to call all those parameters, right? So those are useless for me. So the problem with this is either your constructor is going very heavy or you have multiple constructor. Now in both the cases there are disadvantages, right? Either the client will get confused or the client code will look very ugly because he might not be aware of all the optional parameters. ठीक है? उसको नहीं पता कि कैनोपी के साथ क्या करना है. कैनोपी का मतलब ही नहीं पता है. वो नया अभी घर बनाना शुरू किया, उसको नहीं पता है कैनोपी में क्या होता है, राइट? तो वो किस बेसिस पे कैनोपी में यस या नो करे. Client might not be aware of each and every details of your parameters, right? So in that particular case, ठीक है? अब जैसे मैंने बोला, राइट, कि डिजाइन पैटर्न क्या करते हैं, कॉमन जो प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होते थे उसका सॉल्यूशन है, राइट? तो इसमें क्या प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, यू स्टार्टेड विद दिस 4 हाउस कांसेप्ट, राइट? अपने क्लाइंट को तुमने सिर्फ 4 वॉल प्लस रूफ वाला हाउस दिया था. नाउ द रिक्वायरमेंट केम, यू एडेड दिस. नाउ यू एडेड कैनोपी. ठीक है? यू विल ऐड समथिंग एल्स एज वेल, राइट? नाउ आफ्टर 4 or 5 iteration, your code or your class is getting bulkier with multiple constructor or multiple parameter in the constructor. Now the real problem starts. क्योंकि तुमने पहले रियलाइज ही नहीं किया है कि पहले क्या प्रॉब्लम होने वाली थी, राइट? सो और इसका क्या सॉल्यूशन आया? ठीक है? तो somebody said कि हे, मैंने ऐसा प्रॉब्लम देखा है और ऐसा प्रॉब्लम पहले भी आ चुका है. So I have a solution for you. I have a solution of builder. ठीक है? And builder will have the responsibility of
क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर यू, ठीक है। तो बिल्डर का हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। सबको ये पता है कि लॉम्बॉक में बिल्डर एनोटेशन है, इसलिए सबको बिल्डर यूज करना पता है, ठीक है। एट द रेट बिल्डर लगाया, ठीक है, क्लास के ऊपर एट द रेट बिल्डर लगाया, काम कर गया, राइट। बट हाउ द बिल्डर एक्चुअली लुक्स लाइक, हाउ द बिल्डर सपोर्ट्स दिस पर्टिकुलर स्टफ, राइट। बिल्डर लगाने से फायदा क्या होता है? चेनिंग होते हैं, राइट, एज जीत मेंशन, राइट। वी अचीव चेनिंग, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली चेनिंग? बिल्डर लगाने के बाद क्या एडवांटेज होता है? वो जो properties, the properties that we have, we can do like dot add canopy, dot add करेक्ट, हाँ। fence or तो something like प्रोबेबली that, विल से and हाउस, हाउस बिल्डर, dot add like that. हाँ, डॉट कैनोपी parameter and dot probably four wall dot something 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 and then finally you will call build, right? Now यहाँ पे दो चीज है, either you will set the properties directly, ठीक है, बट एक चीज देखो, how this chaining is getting achieved। ये जो पैरामीटर है डॉट कैनोपी या डॉट स्विमिंग पूल, राइट, हर एक बार डॉट के साथ वो कैसे काम लग रहा है, राइट, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, the करेक्ट। exact object. तो ऑल दीज मेथड्स, ठीक है, आर गोइंग टू रिटर्न द रेफरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट का रिस्पॉन्स रिटर्न करता है तो देखो ऐसे हो जाएगा वो, ठीक है। यू सेड हाउस बिल्डर, हाउस बिल्डर, ठीक है, तुमने नॉर्मल हाउस बिल्डर बनाया। आई विल कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पे क्या फिल होगा, ठीक है। देन यू सेड फोर वॉल्स, या फिर फोर वॉल हटाते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कैनोपी से, ठीक है, डॉट कैनोपी, ठीक है, डॉट स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल। नाउ दिस डॉट, ठीक है, कैन बी इन्वोक और सर्टेन ऑब्जेक्ट टाइप ओनली, राइट। अब यहाँ पे हाउस बिल्डर पे मैंने लगाया था, राइट, हाउस बिल्डर में डॉट कैनोपी था। सो दैट मीन्स अगर मैं फिर से डॉट अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो कैनोपी मेथड है, डॉट कैनोपी का जो कॉल था, इट इज ऑल्सो गोइंग टू रिटर्न द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के। इसमें कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये हाउस बिल्डर का या हाउस का? एक बार किसी को ये कंफ्यूजन है क्या? House. हाउस का? Yeah. जी। एनीवन एल्स वांट टू ट्राई हाउस? ठीक है, आई गॉट द आंसर एज हाउस, ठीक है। एनीवन एल्स वांट टू ट्राई कि हाउस रिटर्न होता है कि हाउस बिल्डर रिटर्न होगा? जब मैंने ये जो कैनोपी मेथड है, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज गोइंग टू रिटर्न? हाउस डॉट बिल्डर, राइट, ठीक है। जीत सेड हाउस क्लास, ठीक है, आदित्य सेड हाउस बिल्डर, ठीक है। एक बार इस पे फिर से देखते हैं। देखो हमने कहाँ से कॉल स्टार्ट किया था? हमने किया था हाउस बिल्डर से, राइट। हमने वी सेड हाउस बिल्डर डॉट कैनोपी, ठीक है। मतलब कैनोपी जो मेथड है, ठीक है, वो हाउस बिल्डर के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद अगर मैं स्विमिंग पूल कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, दैट मीन दिस स्विमिंग पूल इज ऑल्सो गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद दिस हाउस बिल्डर, राइट। So if this canopy is going to return me the type of house, ठीक है, then how we are able to call this dot swimming pool, right? This is a question that comes, right? अगर ये canopy एक house type का object return करता है, then how this dot swimming pool is able to achieve, right? क्योंकि directly swimming pool वाला जो property है वो accessible नहीं है house का, right? So this dot canopy method is also going to return us house builder object, ठीक है। जीत, any doubt in this कि हाउस बिल्डर है कि हाउस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा यहाँ से? ये कैनोपी मेथड चेन कर रहे हैं, राइट, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद जब फाइनल, Right, got it. हाँ, I just got confused या initially. दैट्स Thank you. परफेक्टली फाइन। यही एक्चुअली बिल्डर में है बहुत सिंपल, ठीक है, सिर्फ यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एंड देन व्हेनेवर यू फाइनली से बिल्ड, देन एग्जैक्टली दैट ऑब्जेक्ट गेट्स कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो बिल्ड के बाद तुमको क्या मिलेगा? एक हाउस। तो व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस बिल्ड मेथड? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस बिल्ड मेथड? हाउस, ठीक है। किसी को यहां तक कोई डाउट कि जितने भी तुम्हारे पास कैनेपी थे, स्विमिंग पूल थे, इनका रिटर्न टाइप है हाउस बिल्डर, एंड जो फाइनल जो बिल्ड मेथड है उसका रिटर्न टाइप है हाउस? इसमें किसी को डाउट यहां तक? देन विल स्टार्ट विद द कोड कि कैसे वो क्लास दिखता है। ठीक है, सो
Ravi, I want to add another thing. I'm not sure this is one of the advantage or not, but I just observed this. Let's say maybe this is an advantage. I'm not sure. You can correct me. So let's say we have three mandatory parameters, mandatory properties, which we have to mention, and then 7 or 8 unwanted property, like optional properties. So in that case, we have 8 to 9 constructors. But in future, let's say with house, we say that add a new property, let's say coloring, house coloring, that is mandatory. Okay. So if in the old code, we have to add the coloring property in all the 9 or 10 constructors. But in builder, we can add it in only in the first constructor, the original mandatory one, right? Okay, okay, ठीक है. तो देखो होता क्या है कि if you introduce a new property, ठीक है, अगर तुमने एक न्यू प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, इफ इट इज अ मैंडेटरी, ठीक है, देन इन एनी वे इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, चाहे तुम्हारे पास 9 कंस्ट्रक्टर है या इफ यू हैव ओनली वन कंस्ट्रक्टर, राइट. बट इफ यू हैव द बिल्डर डिजाइन पैटर्न, डेफिनेटली यू कैन, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही कंस्ट्रक्टर है, बाकी तो तुम्हारे पास कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, so that property needs to be appended to exactly one, ठीक है. so definitely this is a advantage, ठीक है. and इसका जो ओरिजिनेशन है प्रीवियस 2 पॉइंट का समेशन है, ठीक है. 2 पॉइंट में क्या था, एक तो आइदर योर कंस्ट्रक्टर विल बी हेवी, ठीक है, बल्कि कंस्ट्रक्टर हो जाएगा जिसमें कि तुम एक सिंगल कंस्ट्रक्टर में ही सारे मैंडेटरी ऑप्शनल पैरामीटर लो, या यू आर गोइंग टू हैव अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, ठीक है. सो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर वाला जो अप्रोच है, तब तुमको सारे कंस्ट्रक्टर में प्रॉपर्टी अपेंड करना पड़ेगा. डेफिनेटली दिस इज अ एडवांटेज ऑफ बिल्डर डिजाइन पैटर्न एंड दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज, ठीक है. तो 2-3 जो काम करता है ये बहुत बेस्ट करता है, जैसे कि एक मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को अवॉइड कर देता है, या फिर मल्टीपल प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्टर उसको अवॉइड कर देता है, राइट. एंड एज वी सीन, राइट, कि डिजाइन पैटर्न का काम क्या है, हेल्प करना, ठीक है, या जो कॉमन प्रॉब्लम्स आने वाले थे फ्यूचर में उनको अवॉइड करना. तो डेफिनेटली एक ये प्रॉब्लम था जो फ्यूचर में आ सकता था, एंड उसको हमने प्रोबेबली, अगर बिल्डर डिजाइन पैटर्न करते तो प्रोबेबली हम उस प्रॉब्लम से बहुत पहले बच जाते, ठीक है. सो आइदर वी रनिंग इनटू प्रॉब्लम, हम प्रोएक्टिवली प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, एक बार कोड देख लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स सपोज वी हैव दिस हाउस, राइट. सो व्हाट ऑल प्रॉपर्टीज हाउस हैव, let's suppose 4 walls, ठीक है, and let's suppose you have something like a roof, ठीक है, you have a swimming pool, ठीक है, you have canopy, ठीक है. इतने प्रॉपर्टी के साथ चलते हैं, ठीक है. अब 4 walls and roof is going to be mandatory parameter, right, and the swimming pool and canopy is optional. So what all alternatives you have, either you will have one constructor with all these parameter, or you will have probably 3 constructor, right. One basic constructor with 4 walls and roof, second constructor with 4 wall, roof and swimming pool, and third will be 4 wall, roof and canopy, right. And एक चौथा भी रखना पड़ेगा, 4 wall, roof and swimming pool and canopy. मतलब based upon the how you want to structure your code, either you are going to have one bulky constructor या you are going to have multiple constructor, ठीक है. तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, कि अब अपने को बिल्डर करना है, ठीक है. तो हमने क्या बोला, will have, ठीक है, ठीक है, हाउस बिल्डर, ठीक है. एंड अब हम क्या करेंगे, हाउस बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिल्ड द ऑब्जेक्ट, बिल्ड द हाउस ऑब्जेक्ट, राइट. सो इसमें बिल्ड हाउस इंस्टेंस, राइट. एंड हमने प्रीवियस क्या देखा है, हम लोग बिल्ड कॉल करते थे, राइट. सो वी यूज टू कॉल द बिल्ड मेथड, वो किसका पार्ट हो सकता है, हाउस बिल्डर का, राइट. हाउस बिल्ड, जो बिल्ड मेथड था वो क्या करता था, इसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है. जस्ट आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट लिंक जो मैंने ओपन की थी रिफ्लेक्टिंग वाली.
ठीक है, सी दिस एग्जांपल, ठीक है। तो वहां पे हाउस वाला एग्जांपल था, लेट्स सपोज यहाँ पे स्टूडेंट है, राइट। अब स्टूडेंट में ही तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज द मैंडेटरी पैरामीटर, राइट। कोई भी स्टूडेंट बिना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ नहीं हो सकता, राइट। एंड उसके बाद एज, जेंडर, ग्रेजुएट है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, दीज आर ऑल द ऑप्शनल पैरामीटर, राइट। सो आइदर यू हैव गोइंग टू हैव द मल्टीपल कंस्ट्रक्टर और हेवी कंस्ट्रक्टर, बट उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, बिल्डर पैटर्न। तो उसका क्या सिंपल दिखता है वो देखो। नाउ व्हाई वी हैव मेड द कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हियर, एक बार इस पे सोचो, ठीक है। we'll walk through this code one by one, ठीक है। so why we have made the constructor private of this class, anyone want? because हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट करने नहीं दे रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर डायरेक्ट क्रिएट करने देते तो फिर तो वही प्रॉब्लम था, राइट। योर कंस्ट्रक्टर इज वेरी हेवी, क्लाइंट विल नॉट नो कि क्या क्या पैरामीटर पास करना है, सो देयर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक, राइट। सो हमने क्या बोला कि विल नॉट अलाउ द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू बी स्टेटेड आउट, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्टूडेंट क्लास, सो वी हैव मेड द कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, ठीक है। एक चीज गौर करना, ठीक है, इसका जो पैरामीटर है स्टूडेंट बिल्डर है, ठीक है। विल कम टू दिस, इसके पैरामीटर में स्टूडेंट बिल्डर क्यों है, ठीक है। एक बार इस पे देखते हैं, इस क्लास पे देखते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी सेड कि स्टूडेंट बिल्डर हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ, ठीक है, क्रिएटिंग दोज ऑब्जेक्ट, राइट, क्रिएटिंग द स्टूडेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। एंड उसका एक बिल्ड मेथड था जो कि हाउस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, इस केस में ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, राइट। सो यू हैव दिस बिल्ड मेथड, ये वाला जो मेथड है, ठीक है, इसको गौर करो। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट स्टूडेंट बिल्डर या हाउस बिल्डर, बट द रिटर्न टाइप इज स्टूडेंट क्लास और द हाउस क्लास, राइट। उसके बाद सिर्फ इस मेथड से तो नहीं काम चलेगा, राइट, बिकॉज दिस मेथड नीड्स टू हैव सम इंफॉर्मेशन, राइट, कि ग्रेजुएट है कि नहीं, बाकी डिटेल्स है कि नहीं, राइट। सो फॉर दिस you have this entire set of property that was already available, ठीक है। जितने भी प्रॉपर्टी तुम्हारे स्टूडेंट क्लास में थे, all the properties will be listed here, ठीक है। and then you will have a constructor with a basic property or the mandatory property, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस को देखो, स्टूडेंट बिल्डर को, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर क्या रिटर्न कर रहा है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये स्टूडेंट बिल्डर, राइट। ये स्टूडेंट बिल्डर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड दिस कैन हैव सम ऑफ द मैंडेटरी पैरामीटर्स दैट यू वांट, ठीक है। सो प्रोबेबली इन दिस केस इट इज फर्स्ट नेम एंड दिस इज लास्ट नेम, ठीक है। सो यू हैव क्रिएटेड अ स्टूडेंट बिल्डर ऑब्जेक्ट। अभी तक स्टूडेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ तुम स्टूडेंट बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो फॉरगेट अबाउट दैट स्टूडेंट क्लास ऑल टुगेदर, सिर्फ स्टूडेंट बिल्डर पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्टर एक स्टूडेंट बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है विद दिस टू पैरामीटर्स, ठीक है। नाउ व्हेन वी से कि मेथड चेनिंग, ठीक है, या जितने भी पैरामीटर्स थे वो एक दूसरे के साथ डॉट से अपेंड होते थे, राइट। सो डॉट क्या है, उस क्लास पे कॉल कर सकते हो, उस क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप पे कॉल कर सकते हो। सो नाउ व्हेन आई से अ प्रॉपर्टी कॉल एज, ठीक है, इसका कुछ भी नाम रख सकते हो। प्रोबेबली जब लॉम्बॉक यूज करते हो तो सीधे इट कम्स एज द प्रॉपर्टी नेम। यहाँ पे प्रोबेबली एड एज है, लॉम्बॉक में तुमको ये सीधे एज दिखेगा, डॉट एज आ जाएगा, ठीक है। सो ये तो लॉम्बॉक खुद क्या करता है, सीधे प्रॉपर्टी नेम को देता है, बेस्ड अपॉन योर यूज केस तुम इस नाम को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो तुमने बोला ऐड इज, ठीक है। इसका देखो गौर से, इसका जो रिटर्न टाइप है दिस इज अ स्टूडेंट बिल्डर, ठीक है। क्यों, बिकॉज यू नीड टू चेन, हर एक जो पैरामीटर है वो एक के ऊपर कॉल होगा। एंड ऑर्डरिंग डजंट मैटर, राइट। मैं पहले एज कर सकता हूँ, फिर प्रोबेबली मैं ग्रेजुएट कॉल कर सकता हूँ, फिर आई कैन कॉल जेंडर, राइट। किसी भी ऑर्डर में कॉल कर सकता हूँ। सो ईच एंड एवरी दिस प्रॉपर्टी is going to return the type of that student builder object। तो उसने क्या बोला, अपने एज में सेट किया, जैसे ही तुमने ऐड एज बोला, it has set this age property and return the same reference of the object जिसपे से ये कॉल हुआ था, ठीक है। it has written this in Java, this मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने के रेफरेंस के साथ ये कॉल हुआ था वो रिटर्न हो गया, राइट। सो these all methods are returning this student builder। तो जैसे ही तुम डॉट 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 जब तक कर रहे हो तब तक यू आर ओनली डीलिंग विद दिस स्टूडेंट बिल्डर ओनली। अभी तक कहीं भी पिक्चर में नहीं आया है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। व्हेन द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट विल कम इनटू पिक्चर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट विल कम इनटू पिक्चर नाउ व्हेन यू से बिल्ड, ठीक है। तो बिल्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिल्ड करता है, क्या बिल्ड करता है, स्टूडेंट को बिल्ड करता है।
स्टूडेंट बिल्डर के बिल्ड की क्या प्रॉपर्टी है, इट बिल्ड्स अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, राइट। सो जब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को बिल्ड करेगा, सो इट इज गोइंग टू रिटर्न अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए इसका रिटर्न था स्टूडेंट। बट स्टूडेंट कब बनेगा कैसे, राइट। स्टूडेंट इसने बोला कि बिल्ड, बट बिल्ड के पास कुछ तो मैजिक होना चाहिए ना स्टूडेंट क्रिएट करने का, राइट। यहां तक कि इसको स्टूडेंट के बारे में पता ही नहीं है, तब काम आता है, ठीक है, ये वाला मेथड, ये वाला कंस्ट्रक्टर। और मैंने उसमें क्या बोला है कि स्टूडेंट क्लास कैन ओनली बी क्रिएटेड विथ अ टाइप ऑफ अ बिल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड बिल्डर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो तुमने असाइन कर दिया इस क्लास में, जैसे दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू बिल्डर डॉट फर्स्ट नेम, ऐसे सारी प्रॉपर्टी असाइन कर दिया, राइट। एंड ये कंस्ट्रक्टर क्या रिसीव करता है, एक बिल्डर टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखो, यू कॉल दिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बाय पासिंग दिस, मतलब तुमने क्या पास किया है, स्टूडेंट बिल्डर का टाइप पास किया है। तो नाउ इट विल इन्वोक दिस कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, ये वाला पैरामीटर पास करेगा, और ये क्या करता है, नॉर्मल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करता है वो करके दे देगा। तो नाउ यू कैन क्रिएट द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट विद दिस टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर तुमने कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेट नहीं किया है तो